Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so in last lecture, we have discussed the formation of the partial differential equation by using the elimination of arbitrary functions. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think we have completed all the examples for that. Okay, so today we are going to discuss about the next method. It is for the first order, okay, first order linear partial differential equation, and the method is known as the Lagrange's equation. Okay, so you can see on your screen in last lecture we discussed about this. Okay, examples of formation by eliminating arbitrary functions. We completed all the examples for that, and now today, yes, you can see. Yes. Okay. Now we are going to discuss about this 3.3, which is the first order linear partial differential equation, and it is also known as the Lagrange's equation. So today we are going to discuss about this. Okay. So we already discussed the form of the Lagrange's. Okay, हमने पहले ही कर दिया है उसका फॉर्म क्या होता है और वो सब. So is it visible to all, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we already discussed that first order means उसमें एक ही differentiation होगा, है ना? First order means one time differentiation होगा, but in partial derivative we have two types of first order, del z by del x, that means p, and del z by del y, it is q. Okay, so linear differential equation, linear means the degree of p and q will be 1. Okay, and partial differential equation we already know. Then Lagrange's equation means special type of equation. So Lagrange's support, okay, Lagrange's evaluate the or proposed the one form which is the first order linear partial differential equation, pp plus qq equal to r. So it is known as the Lagrange's equation. Okay, so first we discuss the partial differential equation of the first order. Okay, so a differential equation involving first order partial derivatives p and q only is called a partial differential equation of the first order, but we cannot take p into q. Okay, so keep in your mind, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ p and q अंदर होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो यहाँ पे p and q वहाँ पे है, p डॉट q नहीं होना चाहिए. That is the first condition. Okay, next, a partial differential equation of order 1 is of the form pp plus qq equal to r, where p, q and r are functions of x, y, z. So such type of partial differential equation is known as the 3.3, which is first order linear partial differential equation or Lagrange equation. So we discuss this type of differential equation in this topic, and we find the solution for that. We already know the solution for this type of differential equation, क्योंकि हमने फॉर्मेशन में कर ही दिया. क्या होता था, f of uv is equal to 0. yes or no? Yes, sir. है ना? तो हम वही यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्लाइड, एनीबॉडी? No, sir. No, sir. Okay, now working rule to solve Lagrange's equation. Okay, so first is you have to convert the given statement or given differential equation in this form. The form is pp plus qq equal to r, that means capital P into small p plus capital Q into small q equal to r. But here small p and small q will be, what is it? Derivative. Derivative. Partial. First time partial derivative with respect to x and with respect to y. So keep in your mind, from this you can find capital P, capital Q and capital R in your step number 1. तो स्टेप नंबर 1 में पता चल गया कि इसके साथ हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, और उसमें से P, Q and R आपको फाइंड आउट करना है. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Okay, now step number 2. Step number 2 is write down the auxiliary equations of 1. मीन्स जो यहाँ पे 1 है उसके auxiliaries equation आपको मिलेंगे.
you can write in this form dx by capital P is equal to dy by capital Q is equal to dz by capital R. You have already P, Q and R, so simply substitute here and write down the auxiliary equation. So that is your step number 2. Clear? Yes, sir. Okay, next step is you have to solve these auxiliary equations. Means you have to find out the two constants C1 and C2 from these auxiliary equations. But to find the C1 and C2, यहाँ पे देखो यहाँ पे C1 and C2. Okay, to find the C1 and C2, you have to use two different sub methods. First one is method of grouping, that means grouping method, and number 2 is multiplier method. Okay, so we will discuss later on about the grouping method and multiplier method, but step number 3 is find out the constant C1 and C2 by using grouping or multiplier method and say C1 is equal to U and C2 is equal to V. So you will get your last step and it is our general solution. You can write down the general solution in the form f of uv is equal to 0. Means substitute here the value of u and value of v. U means C1 and v means C2. So we will get our solution of the equation 1, which is the Lagrange equation. So is there any doubt in working rule? Anybody? No. Okay. यहाँ पे देखो आपको क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, यहाँ पे सॉरी 3 आएगा 3 एंड यहाँ पे 4. सो 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 में आपको C1 एंड C2 फाइंड करना है. अब C1 एंड C2 आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, ग्रुपिंग मेथड से या फिर मल्टीप्लायर मेथड से. अब ग्रुपिंग मेथड क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, वो में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन आपको दो चीज फाइंड करना है, C1 एंड C2. जैसे आप C1 एंड C2 फाइंड करते हो तो C1 को आपको U बोलना है एंड C2 को आपको V बोलना है. ओके, अब U एंड V आपके पास हो गए हैं, मिल गए इन स्टेप नंबर 3. सो in step number 4 you have to write down the solution in this form, f of uv is equal to 0. So this is the 4 step example. Do you understand everybody? Yes, sir. What about others? Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now next मेथड ऑफ ग्रुपिंग. ओके, अब मेथड ऑफ ग्रुपिंग क्या है, वो वेरी सिंपल मेथड. ओके, ग्रुप बनाना है. मेथड ऑफ ग्रुपिंग मींस आपको ग्रुप बनाना है. यू हैव द ऑक्सिलरी इक्वेशंस. ओके, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. अब इसमें से हम कितने ग्रुप्स ले सकते हैं, कोई मुझे सजेस्ट करेगा कितने ग्रुप्स ले सकते हैं हम? 3. ओके, सो फर्स्ट ग्रुप होगा dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q. ओके, सेकंड ग्रुप होगा dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. एंड थर्ड ग्रुप जो है, पॉसिबल थर्ड ग्रुप है dx अपॉन p इज इक्वल टू dz अपॉन r. ओके, अब ये आपने 3 ग्रुप बना दिया. अब ये 3 ग्रुप का आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, देन यू कैन कंसीडर. ओके, मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पे dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q है, तो p एंड q अगर आपके पास इस टाइप का है, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, तो यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस. यस और नो? Yes, sir. सो इसका इंटीग्रेशन करके यस आपको एक कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. C1 कैसे, यहाँ पे देखो log x है. ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल dx अपॉन x की जगह पे मैं x dx भी बोलूँ तो भी चलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, y dy है ना. तो अगर यहाँ पे x dx प्लस y dy आया तो x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है ना, dx एंड dy टोटल डिफरेंशिएशन है. तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 हुआ. सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1 है ना. अब ये C1 को मुझे फिर से इंडिकेट करना है 2C1 की जगह पे, तो मैंने उसको C1 डैश बोल दिया, तो ये C1 हो जाएगा. अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका C1 हुआ, दैट मीन्स से इट इज योर u ऑफ एक्स वाई, मीन्स फंक्शन ऑफ x एंड y. सो हमको C1 मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो? सो यू आर यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड.
ओके यहाँ पे आपने ग्रुपिंग मेथड यूज किया। ओके अब सिमिलरली dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर एंड dx अपॉन p इज इक्वल टू dz अपॉन आर, ये दोनों में से अब किसी एक का ही काम है क्योंकि यू ऑलरेडी फाइंड योर C1। अब मुझे दूसरा क्या बाकी बचा है, C2। तो अब ये तीन ग्रुप में से आपको दो ग्रुप यूज करके C1 एंड C2 फाइंड करना है, दैट इज द ग्रुपिंग मेथड। क्लियर? यस सर। ओके अब कभी कभी क्या होता है कि ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग मीन C1 के लिए एंड C2 के लिए अगर आप देखेंगे C1 C2 के लिए, तो C1 आपको मिला ग्रुपिंग से, C2 भी आपको ग्रुपिंग से मिला है, लेकिन कभी कभी क्या होगा एक ही आपको ग्रुपिंग से मिलेगा। क्लियर? कैसे? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो dy बाय यहाँ पे आपके पास है z प्लस y, यहाँ पे आपके पास है dz अपॉन x प्लस z। तो यहाँ पे देखो dy एंड dz है तो यहाँ पे x आप रिमूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। नो सर। तो अगर यहाँ पे x आप x नहीं रिमूव कर सकते, दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज दिस ग्रुप फॉर योर ग्रुपिंग मेथड, है ना। डन? मैं आपको एग्जांपल में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर? मीन्स यहाँ पे dy एंड dx है तो पूरा टोटल आपका जो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल दिखने चाहिए आफ्टर एलिमिनेटिंग y एंड z। ओके तब जाके आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हो तो ये ग्रुपिंग मेथड आपको काम नहीं देगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस सर। तब आपको कौन सा मेथड करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर मेथड। मींस एक ग्रुपिंग से हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लायर से हो जाएगा। अब थर्ड पॉसिबिलिटी भी क्या होगी C1 एंड C2 के लिए, मल्टीप्लायर प्लस मल्टीप्लायर। मींस ग्रुप कोई भी आपको काम नहीं देगा, तब आपको दोनों ही दोनों C1 एंड C2 दोनों ही दोनों किससे मिल जाएंगे, आपको मल्टीप्लायर प्लस मल्टीप्लायर से मिल जाएंगे। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज of the example for this method. Understand everybody? यस सर। ओके अब ग्रुपिंग मेथड में किसी को डाउट है? नो सर। देखो यहाँ C1 मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड दो ग्रुप में से आप किसी को भी आप कंसिडर करके आप C2 फाइंड कर दो, और C2 को आप V ऑफ एक्स जेड मीन्स जो भी आपने ग्रुप लिया है, YZ लिया है तो V ऑफ YZ बोलो। ओके तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। देन हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। u यहाँ पे रख दो, v यहाँ पे रख दो, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट इन ग्रुपिंग मेथड? नो सर। ओके अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर मेथड, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, हाँ प्लीज यू कैन आस्क मी। ओके अब मल्टीप्लायर मेथड में थोड़ा यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क मीन्स इन फॉर्म ऑफ एरर, है ना, ट्राई एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस होंगे, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर। फॉर दिस मेथड ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर यहीं पे गलती हुआ तो आपका पूरा एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे बी केयरफुल। अब यहाँ पे मेरे ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, अब इसमें से मुझे ये फॉर्म में लाना है। देखना है यहाँ पे एल एम एन दैट मीन्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, एंड नीचे भी ऐसे ही एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट टास्क, टू फाइंड मल्टीप्लायर। जो भी मैंने मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज किया उसको फाइंड करना पड़ेगा। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कीप इन योर माइंड यू हैव टू यूज दिस वन, डिनोमिनेटर का आपको यूज करना है। दैट मीन्स एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर अगर 0 मिलता है, इसे आपने अगर एल एम एन फाइंड कर दिए तो आपको वो ऊपर सब्सटीट्यूट करना है। दैट मीन्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0 में आपको उसको सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेशन करना है। लेकिन द मेन टास्क इज टू फाइंड एल एम एन फॉर एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इज इक्वल टू 0। अगर ये आपको एल एम एन मिल जाते हैं देन यू आर यूजिंग योर मल्टीप्लायर मैथड। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो डिनोमिनेटर 0 टू,
हाँ, ये मेथड ही है, ये लाग्रांज ने सजेस्ट किया है कि अगर आप इस मेथड से करेंगे देन यू विल गेट योर सॉल्यूशन। वो तो हमको भी क्वेश्चन हुआ है कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म किया, देखो लाग्रांज ने, है ना, यस है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पे उसने यूज किया है, क्योंकि देखो नीचे को 0 कर रहा है और यहाँ पे उसी को यूज करके सॉल्व कर रहा है, न्यूमरेटर को यूज करके। तो दोनों ही फॉर्म को उन्होंने 0/0 लेके यहाँ पे मेथड यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट किया है, ओके, आपको सजेस्ट किया है। डन। सो डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। है ना, उन्होंने सिर्फ ये LMN फाइंड करने के लिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म लिया है, और 0/0 लेने से हमारा सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाता है, इसलिए उन्होंने ये मेथड सजेस्ट किया था, ओके, इन्वेंट किया था। तो अगर ये एक C1 यहाँ से मुझे मिल जाएगा LDX प्लस MDY प्लस NDZ इज इक्वल टू 0 से, तो C1 इज इक्वल टू मुझे 1 मिल जाएगा। अब दूसरा अगर मल्टीप्लायर है तो उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए M प्लस M वाला, तो दूसरा C2 मुझे मल्टीप्लायर से मिलेगा, तो क्या होगा कि आपके पास दूसरी एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें P Q N R ये कॉम्बिनेशन जो है वो 0 होगा, L डैश P प्लस M डैश Q प्लस N डैश R इज इक्वल टू 0। तो एट द टाइम यू हैव फाइंड L डैश M डैश एंड N डैश, एंड फ्रॉम दैट L डैश dx प्लस M डैश dy प्लस N डैश dz is equal to 0 को सॉल्व करके you will get your second C2. Done? Clear everybody? यस सर। ओके अब यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको LMN जो है उसके क्या हो सकता है, तो LMN एक तो कांस्टेंट हो सकते हैं, यस और नो, यस या फिर फंक्शन ऑफ XYZ हो सकता है। क्लियर? अब XYZ हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी करके, यहाँ पे देखो L किसके साथ है, पी के सर। DX के साथ, है ना, यहाँ पे M किसके साथ है, यस DY के साथ, एंड N जो है वो DZ के साथ है। तो यहाँ पे आप LMN का अगर आप सिलेक्शन यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे क्या लूं तो मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने 1/y ले लिया है ना L को, तो यहाँ पे dx है, सो हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस टर्म, इज इट पॉसिबल? नो सर। नो। ओके, तो एलिमिनेशन करने के बाद अगर ये y दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है dy के साथ, देन इट इज नो प्रॉब्लम, बट z है उसके साथ, तो यहाँ पे y dz में फिर खतरा, डेंजर, है ना, यस है ना। तो अगर ऐसा फॉर्म आए तो यू कैन नॉट यूज दैट L, ओके, तो आप उस टाइप का L नहीं ले सकते। तो कीप इन योर माइंड, यू हैव टू find or you have to evaluate LMN in that form which complete this process, that means LP plus MQ plus NR is equal to 0 बनना चाहिए, and you have to integrate that step LDX plus MDY plus NDZ is equal to 0, नहीं तो फिर आपके LMN कुछ काम के नहीं है। Everybody understand? यस सर। है ना? Okay, what about others? What about others? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन। ओके, तो अभी इसको हम एग्जांपल में करते हैं, चलो एग्जांपल में अंडरस्टैंड करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन xp plus yq इज इक्वल टू z। अब ये मेरा एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले ये लाग्रांजे का है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? PP plus QQ equals to R के फॉर्म। Yes. वेरी गुड, PP प्लस QQ इक्वल टू आर। बट अगर उसमें वो फॉर्म में नहीं और थोड़ा पहले आपको दूसरे फॉर्म में दिया है, देन इट विल बी रिड्यूस, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपली और लीनियर होगा। नहीं, यहाँ पे P एंड Q का जो पावर है ना वो आपको चेक कर लेना है कि P का पावर क्या होगा 1 एंड Q का पावर 1 है, देन ऑल्सो इट विल बी द लाग्रांजेस इक्वेशन। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर।
है ना, क्योंकि Yes. इसमें लीनियर फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म इसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, PP प्लस QQ इक्वल टू R, बट समटाइम्स दे डोंट गिव द डायरेक्ट फॉर्म, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इक्वेशंस बाय यूजिंग द पावर ऑफ P एंड Q। ओके, तो दैट इज योर जीरो स्टेप। ओके, वो आपको थोड़ा ध्यान रख के करना है। ओके, अब मेरा ये फॉर्म हो गया तो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ step number 1 is comparing 1 with PP plus QQ equal to R. We have P is equal to X, Q is equal to Y, and R is equal to Z. That is your step number 1. Now we completed our step number 1. Yes or no? Yes. ओके, अब स्टेप नंबर 1 तो इजी था, कर दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टेप नंबर 2 भी बहुत ही इजी है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx by p plus dy by q is equal to dz by r। तो ये मेरे ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। अब उसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p q एंड r। सो यहाँ पे देखो p is equal to x था, तो dx upon x is equal to dy upon y and dz upon z। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें से आपको दो ग्रुपिंग या फिर दो मीन्स वन ग्रुपिंग या मल्टीप्लायर, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी मल्टीप्लायर प्लस मल्टीप्लायर, ऐसे आपको C1 एंड C2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दोनों के लिए ऑब्जर्व करूंगा। तो यहाँ पे कैन वी मेक एनी ग्रुप फॉर दिस? Yes. है ना, तो यहाँ पे देखो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई। तो ये अगर मैं ग्रुप लेता हूँ तो यहाँ पे x एंड y के अलावा कोई भी वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। तो वी कैन टेक दैट ग्रुप। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना, तो यहाँ पे देखो dx by x is equal to dy by y। I consider first two fractions। ओके, दो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस मैंने ले लिए। सो यहाँ पे dx by x is equal to dy by y का सीधा इंटीग्रेशन करना है आपको। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट log x is equal to log y plus log c1। log c1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों log में थे, इसलिए कांस्टेंट को भी मैंने log में ले लिया। अब यहाँ पे लॉगरिथम का अगर मैं रूल यूज करूँ, सो दिस इज नथिंग बट log x बाय y, क्योंकि ये y वहाँ जाएगा तो log x माइनस log y। चलो एक स्टेप ज्यादा करता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता ही है लेकिन किसी को नहीं पता है, तो यहाँ पे देखो log x माइनस log y इज इक्वल टू log c1 हो जाएगा। अब इसके लिए तो हमारा है ना log a माइनस log b, दैट मीन्स log a बाई b, तो मैंने वही यूज किया log x बाई y इज इक्वल टू log c1। नाउ यू कैन रिमूव योर log। ओके, सो यहाँ पे x बाई y इज इक्वल टू c1। अब c1 को हमको क्या बोलना है, u, लेकिन यहाँ पे u किसका फंक्शन है, x एंड y का, तो यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ x y। अब u इज फंक्शन ऑफ x y नहीं लिखेंगे, अकेला u लिखेंगे, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। सो इज देयर एनी डाउट अप टू c1? एनीबडी? No. No. ओके, नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी मैं इसको चेक करूंगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉसिबिलिटी जो है y एंड z वाले को मैं अब चेक कर रहा हूँ। देखो तो y एंड z में भी वही प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो dy बाई वाई dz बाई z, तो यहाँ पे टोटली दोनों टर्म में दो ही वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं y एंड z। ओके, तो उसके अलावा x है ही नहीं, देन इट इज नो प्रॉब्लम। ओके, दैट मीन्स देयर इज नो एनी इश्यू रिगार्डिंग दी ग्रुपिंग मेथड। ओके, सो यहाँ पे ग्रुप हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आई कंसिडर टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस में, लास्ट टू फ्रैक्शंस हमने कंसिडर किया। सो dy बाई वाई इज इक्वल टू dz बाई z। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट log y इज इक्वल टू log z प्लस log c2। सिमिलर ही यहाँ पे log y बाई z इज इक्वल टू log c2, यहाँ पे y बाई z इज इक्वल टू c2, एंड उसको मुझे क्या बताना है, v। अगर यहाँ पे आप फंक्शन लिखते हो तो व्हाट इज v इज द फंक्शन ऑफ YZ. yes yz। Yeah. don't write down here xy। ओके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो v इज द फंक्शन ऑफ yz। ओके, तो यहाँ पे yz हो गया। ओके, अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, u मेरे पास है, v मेरे पास है, तो नाउ रिप्लेस u एंड v हियर। सो f ऑफ u क्या था मेरा, यू कैन सी हियर u मेरा था x बाई y, तो यहाँ पे x बाई y आ जाएगा। यहाँ पे v मीन्स मेरा y बाई z, एंड दैट इज the required general solution. So is there any doubt, any question in this method, in this example? No, sir. No, sir. Okay, so this is about the first example. Now next, चलो second example देखते हैं।
यहाँ पे दोनों ही दोनों, अगर कोई यस एक बात बताना भूल गया, यस अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड यूज करेगा तो पर भी वो भी सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर ये सेकंड ये नहीं लिया है और कोई ये कंसिडर कर रहा है dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड, तो पर भी उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बाई जेड इज इक्वल टू सी टू, यस और नो, Yes, sir. है ना। तो Yes. that, और उसको हम बोलेंगे v, तो दैट इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। ओके, तो f ऑफ उस टाइम पे आपका हो जाएगा x बाय वाई एक्स बाय जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी आपका सॉल्यूशन है, मींस आप कोई भी दो ग्रुप ले सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही लेना है, लेकिन द पॉसिबिलिटीज आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 पॉसिबिलिटी आपके पास है। अब उसमें से आप कोई भी 2 पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके व्हाट इज अवर मेन एम टू फाइंड द कांस्टेंट C1 एंड C2, दैट इज अवर मेन टास्क फॉर दिस मेथड। क्लियर एवरीबॉडी? तो सर सॉल्यूशंस तो फिर तीन हुए ना, सॉरी, सॉल्यूशंस 3 हुए। सॉल्यूशन तो ये पार्शियल के लिए तो वी कैन नॉट फाइंड यूनिक सॉल्यूशन बेटा, है ना। यहाँ पे देखो हम जो कर रहे हैं वही यूनिक नहीं है। देखो C2 मींस कोई कांस्टेंट ही ले रहे हैं ना, तो जैसे आपने कांस्टेंट चेंज किया तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। है ना। अब पार्शियल में क्या है कि मोर देन वन वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे यूनिकनेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों के साथ, मीन्स हम तीनों के साथ डील कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई कंसिडर करता है। यहाँ पे देखो यही u है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। u जो है मैं अगर एक्स वाई जेड लिखूँ तो चलेगा कि नहीं, फंक्शन ऑफ चलेगा? यस सर चलेगा। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर x बाय वाई इंटू जेड रेस टू 0 करूँ देन इट इज करेक्ट। ओके, नॉट ए इश्यू, है ना। तो यहाँ पे यही मेन फंडामेंटल है कि यहाँ पे आप देखो कि अब कोई भी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 3 होने से हमारा थोड़ा जो रिस्ट्रिक्शन था ऑर्डिनरी में वो यहाँ पे थोड़ा रिमूव हो जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस है। Okay, now we go for the second example. Solve z square minus 2yz minus y square into p plus xy plus z into q is equal to xy minus z। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे चेक कर लो कि p का पावर कितना है, q का पावर कितना है। यहाँ पे कितना पावर है p and q का? What is the power of p and q? 1 1। Okay, तो दोनों का 1 है, that means this is the Lagrange's equation। Okay, so given that this one is our equation 1, now compare this equation 1 with pp plus qq equal to r, so we get p is equal to z square minus 2yz minus y square, q is equal to x y plus z and r is equal to x y minus z। so this is my p q and r। अब ये स्टेप नंबर 1 मेरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नाउ वी गो फॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। तो यहाँ पे सिर्फ p q r सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज योर स्टेप नंबर 2। सो इज देयर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम अप टू स्टेप नंबर 2? किसी को भी? नो सर। ओके, नाउ आई वांट टू यूज द ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर, या फिर जो भी पॉसिबिलिटी होता है वो हम यूज करते हैं। चलो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को, और फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन से कैन वी यूज दिस ग्रुप? कैन वी कंसिडर दिस फ्रैक्शन, दिस ग्रुप? स्टूडेंट? नो सर। नो, व्हाई? व्हाई? जेड का टर्म भी है। यस, यहाँ पे z का टर्म है, और वो जो z का टर्म है वी कैन नॉट रिमूव इट एनीवे। ओके, यहाँ पे कोई भी वे से आप जाएंगे तो z को रिमूव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस ग्रुप। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। सो नेक्स्ट ग्रुप में आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ग्रुप में मैं अगर यहाँ पे ये ग्रुप लेता हूँ देन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? No sir. नो, नो सर। नो Yes नहीं, sir. यस है यहाँ पे। थैंक यू, यस है। क्यों? यहाँ पे देखो
dy बाय एक्स वाई प्लस जेड डी जेड बाय एक्स वाई माइनस जेड, ये दोनों में से आप यहाँ पे अगर थोड़ा सोचेंगे ना तो जो आपका डिस्टर्बेंस वाला x है वो रिमूव हो सकता है। कैसे? यहाँ पे x दोनों जगह पे कॉमन है तो वी कैन कैंसल इट। यस और नो? फिर भी इंटीग्रेशन पॉसिबल कैसे होगा? सर z तो रहेगा ना, z, यस z रहेगा, लेकिन ग्रुप तो पॉसिबल है। तो कर सकते हैं ना यार। यस, ग्रुप तो पॉसिबल है, उसके बाद अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है देन यू कैन नॉट कंसीडर, बट यहाँ पे ग्रुपिंग तो पॉसिबल है कि नहीं? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुपिंग। ओके, तो यहाँ पे इससे ट्राई करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने ट्राई किया, देखो dy बाय एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई माइनस जेड। सो ये तो ग्रुपिंग हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला इसे x x कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी हैव dy बाय y प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई माइनस जेड। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रॉस किया, तो क्रॉस करके क्या आएगा, y इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, अब यहाँ से देखो, ये नीचे वाला स्टेप आपको जल्दी नहीं पता चलेगा, तो एक स्टेप ज्यादा करता हूँ। देखो y dy जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इंटीग्रेशन में कोई इश्यू है? नो सर। नो, तो उसको तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जो लास्ट है z dz, उसमें कोई इश्यू हो सकता है इंटीग्रेशन में? नो सर। नो, तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, दैट मीन्स माइनस जेड डी जेड। चलो, ये दो टर्म तो हमारे हो गए। अब इसके लिए मैं यहाँ पे जो है उसको एज इट इज रखता हूँ, दैट मीन्स माइनस जेड डी वाई, और ये जो है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, सो दैट मीन्स माइनस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टेप? एनीबडी? नो सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे मेरी जो मैं लिख रहा हूँ उसी पे फोकस करना। सो वाई डी, इज इट विजिबल टू एवरीबडी? ये कलर दिख रहा है ना सबको? यस सर। है ना? ओके, सो वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, सो जेड डी वाई माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, सो वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो कैन वी राइट इन दिस वे? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। Yes. अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, अब आप मुझे बताना। माइनस डेरिवेटिव ऑफ y एंड z, दैट मीन्स y इंटू जेड, ये सही है? मैंने ये दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखा, सही है? Yes. यस सर। क्योंकि यहाँ पे डी वाई जेड क्या होता है, फर्स्ट y इज कीपिंग कांस्टेंट, सो z का डी जेड हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस z इज कीपिंग एज कांस्टेंट, सो z आउटसाइड होगा एंड y का डेरिवेटिव dy। वही टर्म यहाँ पे देखो, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो यहाँ पे डी ऑफ वाई जेड, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं? यस है ना? क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन तो क्या है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो, y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, z dz का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स है, मीन्स ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yz खुद आ जाएगा, एंड यहाँ पे 0 की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस ऑल द टर्म्स। सो c1 डैश वहाँ पे मैंने बोला है क्योंकि ये 2 को मुझे उसके साथ लेना है, इसलिए अगर यहाँ पे आप c1 लिख देते हो देन इट इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इज इक्वल टू 2c1 डैश। अब 2c1 डैश को मैंने क्या बोल दिया, c1 बोल दिया। अब c1 मुझे मिल गया है, देन वी कैन से इट इज योर u। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes. ओके सर। ओके, चलो, अब यहाँ पे हो गया हमारा एक ग्रुपिंग हमको मिला और उसका हमको कांस्टेंट भी मिल गया। अब नेक्स्ट हम सोचते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी ग्रुपिंग के लिए। तो थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी है ग्रुपिंग के लिए? फर्स्ट एंड लास्ट, यस और नो? यस सर। Yes. सर वाई का टर्म आ रहा है सर। यस, Yes तो sir, not फर्स्ट, possible.
नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, वो उसका भी आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एडिशन में है, मीन्स यू कैन नॉट टेक y आउटसाइड, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे यहाँ पे आउटसाइड कॉमन निकल सकता है, देन यू कैन कंसिडर दैट ग्रुप। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस Yes. सर। ओके, तो चलो ये हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी भी गया। दैट मीन्स अब दूसरी ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वी गो फॉर द मल्टीप्लायर मेथड। यस और नो? सर पर इसमें कॉमन निकल तो यस सकता है। सर। किस में कॉमन निकल सकता है बेटा? अच्छा नहीं, नहीं हो रहा है ना? श्योर ना? और ओके चलो Yes, Yes. sir. नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कलर लेते हैं, यस ये आपको विजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस था वो यहाँ पे ये है, देखो z² माइनस 2yz माइनस yz इज इक्वल टू dy अपॉन xy प्लस z इज इक्वल टू dz अपॉन xy माइनस z। ओके, अब जो मैं खुद करता हूँ वही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरे पास है वो मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एवरी टाइम, z² माइनस 2yz माइनस y²। यहाँ पे थोड़ा प्लस एंड माइनस अभी फिलहाल करता हूँ, उसके बाद तो देखेंगे। उसको ओपन कर देता हूँ, दैट मीन्स xy प्लस xz, यहाँ पे थोड़ी स्पेस रखता हूँ, प्लस यहाँ पे xy माइनस xz, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिमाग में फिट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आपको L M N की वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। तो क्या ले सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? नीचे मत देखना है ना, नहीं तो फिर आप गए, आपको सेकंड एग्जांपल में नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मुझे नीचे करना पड़ा, नहीं तो मैं करता ही नहीं। ओके चलो यहाँ पे देखो, हाँ अब एल एम एन की पॉसिबिलिटी बताओ। चलो, क्योंकि हमको क्या करना था, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इज इक्वल टू 0 हो, इससे हमको एल एम एन फाइंड करना था, है ना। तो वही कर रहा हूँ मैंने, पी की वैल्यू यहाँ पे रखा है, क्यू की यहाँ पे रखा है, एंड जेड आर की यहाँ पे। अब मुझे एल एम एन फिक्स करना है, तो कैसे करेंगे? चलो, what are the possibility for LMN in this example? कुछ आप गैस वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, इसमें ट्राई एंड एरर ही है ना, डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा। यस टेल मी। हेलो स्टूडेंट। ऐसे डायरेक्ट कैसे बता दे? सॉल्व यस, सॉल्व करके ही बताना है, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ, चलो उसके लिए ट्राई करो। मुझे z² एंड y² वाली टर्म तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना। यस। तो ये दोनों को सेट करने के लिए ट्राई करो, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे z² है, तो दूसरा z² कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक z है ना, यस। और यहाँ पर एक z है। लेकिन यहाँ पे आप z है तो यहाँ पे x है आपके पास, यहाँ पर भी x है ना। तो यहाँ पे x एंड xz है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होके सीधा कैंसिल हो रहा है। तो चलो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर भी 1 रख दिया, तो उसका तो प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व। लेकिन व्हाट अबाउट xy, अगर यहाँ पे 1 एंड 1 किया तो यहाँ पे xy प्लस xy होके 2xy हो रहा है, और यहाँ आगे किसी के साथ वो कैंसिल नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी चला गया। एवरीबडी 1 1 वाला निकल गया ना, पीछे 1 1 वाला एम एन एन। ओके, अब मैं जो बता रहा था उसी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। z² एंड y² चाहिए, तो यहाँ पे z² चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे z मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, यस और नो? यस सर। है ना। तो यहाँ पे मैं z नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर तो ले सकता हूँ ना। ओके, गॉट इट? ये पता चला कि नहीं सबको? तो यहाँ पे हाँ, में क्यों ले सकते? Yes. सॉरी, कैन यू रिपीट इट? सर हम सेकंड टर्म में नहीं ले सकते, तो थर्ड हाँ। टर्म में क्यों ले सकते? हाँ, यहाँ पे देखो z इंटू डी वाई होता अगर आपने सेकंड में लिया होता तो, लेकिन फिर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना हमारे लिए,
यस सर, यस सर। अब यहाँ पे मैं z रखता हूँ तो z इंटू डी जेड होगा, देन इट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंटीग्रेशन। डन? ओके सर, गॉट इट। ओके ओके। अब यहाँ पे मैंने z रखा है, तो चलो यहाँ पे z रखने से यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस एक्स जेड से मुझे यहाँ का भी मुझे मिल गया है, क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, x। सो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलो एक सवाल हो गया। अब वाई स्क्वायर को सेट करते हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को सेट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो हमारा हो गया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मुझे y को सेट करना है, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे वाई स्क्वायर है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मुझे y ही लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा यह प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब इसके लिए चेक कर लो, देन इट इज ओके। यहाँ पे देखो माइनस 2xyz है, और यहाँ पे जो एक स्टेप बचा हुआ xyz है, यहाँ पर एक स्टेप बचा हुआ xyz है, तो यहाँ 2 टाइम्स प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस हो रहा है। दैट मीन्स आवर पॉसिबिलिटी फॉर LMN इज L इज इक्वल टू x, M is equal to y and N is equal to z. Clear everybody? यस। Understand कैसे मैं लेके आया हूँ, आपको मैंने शॉर्टकट थोड़ा दिया, लेकिन ऑलवेज ऐसा वर्क करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्राई एंड एरर मेथड में सिलेक्शन आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 1 1, फिर -1, और किसी के साथ -1 ले सकते हो, है ना। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ये दोनों में से ले सकते हो। उसके बाद x y z हो सकता है, या फिर 1/x 1/y 1/z। इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, किसी को 0 लेना पड़े तो भी ले सकते हो, है ना। 1/x से उसको 0 लेके दूसरे दो का भी यूज कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मैक्सिमम ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें से आपको पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टैंड? Yes. ओके। अगर ये इसमें से नहीं है, देन यू थिंक दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा अगर इसमें से सेट नहीं हो रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। चलो मेरा LMN मुझे मिल गया है, तो आई गो विद दैट। सो यहाँ पे देखो इस फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन था यहाँ पे dx बाई दिस वन इज इक्वल टू dy बाई दिस वन dz बाई दिस वन, उसको मैंने लिख दिया L dx प्लस M dy प्लस N dz। तो यहाँ पे मेरा L था x, y एंड z, और नीचे भी उसको x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो यू कैन सी हियर दिस विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर दिया है ऑलरेडी। सो हमारे पास क्या बचा अब, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट दिस। सो इफ यू इंटीग्रेट दिस देन यू गेट x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c2 डैश। तो यहाँ पे c2 डैश मिल गया। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 डैश। अब c2 डैश को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, c2 बोल सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2 एंड से इट इज योर v। यहाँ पे देखो अब v का जो फंक्शन है वो x y z आया है ना। इफ यू वांट टू राइट हियर, सो v इज द फंक्शन ऑफ x y z, तीनों का यहाँ पे फंक्शन है। और u भी यहाँ पे आई थिंक एक्स वाई जेड, यस u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज अवर लास्ट स्टेप, दोनों c1 एंड c2 दोनों हमारे पास आ गए, u एंड v हमको मिल गए हैं। अब सीधा जनरल सॉल्यूशन। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू मेरा था y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड यहाँ पे v मेरा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दोनों मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 कर दिया। सो दिस इज माय required general solution. So is there any doubt in this example, anybody? Sir, ऊपर Yes, one by one. Yes. बोलो. No. Viraj, your voice is breaking. You can post your question in chat box also. Okay, yes. Anyone? Yes. सर Nice. ऊपर डेफिनेशन में आपने तो लिखा था ना कि u इक्वल्स टू फाई ऑफ v, मतलब u और v में भी कुछ रिलेशन बनना चाहिए। हाँ. वो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या था वो, यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, u इज इक्वल टू फाई ऑफ v और v इज इक्वल टू फाई ऑफ साई ऑफ u। यहाँ पे सबके बीच में और है देखो,
अच्छा एंड नहीं है ना? ओके अगर आप ये दोनों से जाते हो तो ये नहीं करना है, और अगर ये इससे जाते हो तो ये नहीं करना है। डन? यस सर। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना? इसीलिए मैं आपको ऑलवेज इसी से करवाऊंगा, क्योंकि ये इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि यू एंड वी का रिलेशन फाइंड करने में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा आपका, और यहाँ पे सिंपल सीधा यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। गॉट इट? यस। ओके ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? यस विराज, आप कुछ पूछ रहे थे? चलो शॉर्टकट वाले मेथड बताइए ना, वो फिर से बताओ। शॉर्टकट वाली मेथड उसमें कुछ है नहीं, यहाँ तो बन रहा था इसीलिए मैंने आपको बताया। ओके अब शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट देने में क्या किया था मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो z² था ना और y² मीन्स यहाँ पे बाकी की सबके पावर 1 1 थे। यहाँ पे x का 1, y का 1, x का 1, z का 1, x का 1, y का 1, x का 1, यहाँ पे z का 1। सिर्फ ये दोनों टर्म ऐसे थे जिसका पावर 2 था। तो अब 2 को मैं टारगेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली 1 वाले को तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा। यस और नो? यस। ओके तो अब z² मुझे बनाना है तो मेरे पास दूसरे दो टर्म में जहां जहां पे z है वहां पे मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे z था, अगर यहाँ पे मैं z से मल्टीप्लाई करता हूं तो xz² हो जाएगा। इट इज करेक्ट। ओके बट यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन में उसका प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि वहां पे z dy आता। ओके सो वी कैन नॉट टेक z हियर। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने सोचा, तो यहाँ पे xz था तो मैं यहाँ से z² बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया और वो मेरे इंटीग्रेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा xz² कर दिया। जैसे ही मुझे ना यहाँ पे xz² मिला तो मुझे यहाँ पर भी xz² ही बनाना पड़ेगा, तब जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो दो मेरे यहाँ पे l एंड n दोनों यहाँ पे मेरे फिक्स हो जाते हैं। अब सेकंड y² के बारे में सोचता हूँ, तो y² के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी y था और यहाँ पे ये टर्म मेरा टोटल हो रहा है xy²। सो यहाँ पे मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो xy² आ जाएगा। उसके बाद दूसरे दो जो बाकी बचते उसको टैली कर दूंगा कि ये हो जाता है कि नहीं। अगर वहां पर भी प्रॉब्लम होता है देन वी थिंक अगेन। नाउ क्लियर विराज? है ना? ओके इस हिसाब से आपको जो थोड़ा डिफरेंट है उसी को टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा तो सेट हो ही जाएगा। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज सेशन? एनीबॉडी? No, sir. नो सर। ओके सो आई एम गिविंग योर होमवर्क। ओके ये आपके होमवर्क में इसके ट्राई करना, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके सो राइट डाउन दिस, आई विल आल्सो शेयर इन योर team so you can see and try for that. Okay so is there any question regarding this method? Anybody? नो सर। Okay so good day, take care.